अस्सलाम वालेकुम क्लास. Yes class, assalamu alaikum. See the page number 103. Are you listening? वालेकुम अस्सलाम. Now मिस आप क्वेश्चन आंसर मार्क करवा रही हैं? beta, this topic we have completed. No. Okay, so first No. we read this topic on page number 103. First we complete this topic and then we will mark the question answer. Okay. Okay, yes, we start. Okay, now just a bit of circle. Please don't chat with each other. Okay, अगर आप लोग चैटिंग करेंगे दूसरे के साथ ना तो फिर जो है वो आप लोग के अक्षर मार्क करोगे. Okay, now class we start breathing in. Okay, yes, Mariam, you start reading. One second. Okay, teacher. लंग कीजिए ना या ब्रीथिंग आउट. Breathing in से बेटा. Okay. The muscles between the rib contract, lifting the rib cage up and out, expanding the chest at the same time. Muscles contract to flatten the diaphragm, which is a dome-shaped muscle. This makes the space inside the rib cage bigger and reduces the air pressure in the lung. Air moves into the lung from outside through the nose and mouth because there the air pressure is higher. Okay, now just a minute, I show you. Okay, breathing in. Okay. Yes. What is yes. What are you telling, beta? Teacher, जिसके अंदर मसल बिटवीन द मसल जो होती है. Then you are telling about breathing. Yes. Now, we have already discussed about the breathing. Breathing is the exchange of gases in between the page number beta 103. Page number 103. Yeah. So, in the atmosphere and in our body. Okay. Now we are discussing the breathing is of are of two types: breathing in and breathing out. Breathing in is also called inhalation. Okay, CMR is called the exhalation. ठीक है, breathe in करने को हम inhalation भी कहते हैं. ठीक है, और breathe out करने को हम exhalation भी कहते हैं. Breathe in क्या है? When you take in the oxygen in your body. Okay, so when the muscle between the rib, you know about your rib. We have discussed about the rib. Where is your rib? रिब कहाँ होते हैं? टीचर रिब जो ब्लू आपने बताया था कुछ. बताया था ब्लू थोड़ा बताए थे. रिब मैंने आपको बताया था ना. आप लोग जो थिन बच्चे हो तो आसानी से. रिब क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी बोन्स. ठीक है, ये जो है वो बोन्स होती हैं जो कि आपके बॉडी की जो बेस के साइड में पाई जाती हैं. ठीक है, ये बोन्स होती हैं जिनके अंदर आपके लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड हुए होते हैं. ओके, योर लंग्स इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोन्स. पेज नंबर 103. ओके, यस everybody, now you listen. The page number is 103. So when you breathe in, so your muscles, this muscle is present in between the rib cage. Okay, they are called the diaphragm. Okay, this diaphragm is dome shaped structure. You see in the book, आपके बुक में नजर आ रहे हैं. और ये देखिए, ये नजर आ रहे हैं ना आपको. ये नीचे जो ये आपके लंग्स के नीचे का पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड द inhale the air. जो एयर को इनहेल करते हैं, you know from where you inhale the air. कहाँ से आप एयर जो इनहेल करते हैं? From your which body part you inhale air. आपकी बॉडी कौन से पार्ट से आप जो है वो एयर को इनहेल करते हैं? Yes, student, tell me. Do you know कहाँ से जो है वो ऑक्सीजन या एयर आपकी बॉडी में एंटर होती है? Yes, mouth. Okay, from the mouth and from the nose. From these two parts, the air is entered in your body. Okay, when the air is entered in your nose and mouth is go into the trachea and completely filled. Okay, with the oxygen. So this diaphragm are straightened. ठीक है, ये जो diaphragm है ये muscles हैं और ये जो होते हैं ऐसे होते हैं. देखा यहाँ, लेकिन जब आपकी lungs में एयर भर जाती है, diaphragm के जो muscles होते हैं वो डोम से स्ट्रेच से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए. यानी कि diaphragm है वो इस शेप के थे, अब ऐसे हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए. ओके, दिस इज द इनहेलेशन. ये आपका इनहेलेशन है या ब्रीथिंग इन है. जब आपकी जो है वो एयर आपकी जो है वो लंग्स में भर जाती है तो आपके डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं. एक्सेप्ट ऑफ द डोम शेप. डोम शेप के डायफ्राम जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट उसमें आ जाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ ब्रीथिंग आउट.
Yes, who read? Mohammed or Taiba? So can I read? Yes, please. Read it. Breathing out. The rib and diaphragm muscles relax. Diaphragm. Diaphragm नहीं बोला, Diaphragm diaphragm. muscles relax. This lowers the chest and raises the diaphragms. The space in the rib cage gets smaller, so the air pressure increases. This forces air out of the lungs and out through the nose and mouth. Breathing out when the rib and the diaphragm muscles relax. ठीक है, जब आप एयर जो है आपके लंग से बाहर निकल जाती है तो आपके रिब्स होती है, आपकी जो उसकी जो बोन्स होती हैं वो, और जो आपके डायफ्रागम के मसल्स होते हैं, ये डायफ्रागम के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. ओके, एंड द स्पेस इज प्रोड्यूस इन बिटवीन द स्पेस, क्योंकि आपकी जब एयर बाहर निकल जाती है तो आपके लंग्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. तो लंग्स छोटे हो जाते हैं तो ये डायफ्रागम अपने असल शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है. ये डायफ्रागम का असल शेप यही है, डोम शेप है. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये जो है वो डोम शेप जो होता है मसल वो बिल्कुल सीधे जाते हैं, तो इतना प्रेशर पड़ता है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, तो फिर ये दोबारा से अपने असल शेप में वापस आ जाएंगे, डोम शेप में आ जाएंगे. ठीक है, आपके लंग्स का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ योर lungs, nose and mouth. Okay, so this is called the exhalation. Exhalation में क्या होता है? The air is removed from your lungs. What is page number teacher? वो They मेरा exhale हैंग हो out गया from था. your lungs. जी बेटा 103. 103. 103. Yes, page 103, 103. ठीक है. Now तो पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ बेटा हम पढ़ रहे हैं लंग कैपेसिटी. Yes, you read it, हफ्सा. Lung capacity. Wait teacher. Lung capacity. Yes, lung capacity. When the lungs are fully inflated, they hold about 5 liters of air. However, when you are at rest or sleeping, only about 500 centimeters of air is exchanged. During exercise, you breathe in and breathe out an extra 3 liters of air. Okay. Now the lung capacity. You know capacity meaning कितनी गुंजाइश है, कितनी चीज को रखने की आपकी बॉडी में कैपेसिटी है. तो आपके लंग की भी कुछ खास कैपेसिटी होगी. ओके, सो व्हेन योर लंग इज फुली इन्फ्लेटेड, यानी कि जब आपके लंग्स पूरी तौर पर हवा से भर जाते हैं तो कितनी उसमें एयर आ जाती है आपके लंग्स में? तकरीबन 5 लीटर एयर जो है वो आपके लंग्स में आ जाती है जब वो फुली तौर पर जो है वो एयर से भर जाते हैं. ओके, एंड व्हेन यू आर एट रेस्ट और स्लीप 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एयर जो है वो एक्सचेंज होती है. ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब खाली जो होती है वो एक्सचेंज होती है. 500 मिलीलीटर की बात हो रही है. ठीक है, वो 5 लीटर की बात हो रही थी. आप वर्किंग कर रहे हैं आपकी लंग्स में मुकामी तौर पर, लेकिन जब आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में या स्लीपिंग कंडीशन में उस पर आपकी बॉडी में सिर्फ 500 मिलीलीटर एयर यानी कि आधा लीटर जो है एयर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी से एक्सचेंज हो रही होती है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड एक्स्ट्रा 3 लीटर्स ऑफ एयर. जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर जो है वो बॉडी के अंदर आपके लंग्स के अंदर एंटर होती है. ठीक है, नाउ द ब्रीथिंग रेट. यस, हु रीड? अयान और हमजा उमर, एनीवन? माइस, रीड इट. ब्रीथिंग रेट जल्दी से पढ़े, मैं टेस्ट योरसेल्फ करना है जल्दी से. यस, हु वांट टू रीड? रीड इट. जो रीड करना चाहे जल्दी से रीड करें. मरियम और तैयबा तो कर चुके हैं, इनके अलावा हफ्सा आपने भी रीड कर लिया ना. नाउ इट्स 3 लंग कैपेसिटी कर रहा है अपने मोबाइल. मैं कर रहा हूं. लंग कैपेसिटी है ना? जी, लंग कैपेसिटी हो गई बेटा. ब्रीथिंग रेट. हां, ब्रीथिंग. Yes. The muscles between the ribs contract, lifting the rib cage up and out, extending the chest at the. Listen बेटा, breathing rate पढ़ रहा हूँ. breathing out पढ़ लिया हमने. लंग कैपेसिटी हाँ पढ़े थे. At rest, you normally breathe in and out about 16 times per minute. The rises to 20 or 30 times per minute when you are exercising. Okay, so now the simple, when you are in the condition of rest, so your breathing rate is 16 times per minute. यानी कि एक मिनट में आप 16 टाइम जो है वो ब्रीथ बॉडी से बाहर जाती है, 16 टाइम पर मिनट. बट व्हेन यू आर वर्किंग और एक्सरसाइजिंग, सो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकर इन योर बॉडी 30 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट के अंदर 30 टाइम जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट होती है. ओके, सो एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग इज 30 टाइम्स पर मिनट. ओके, व्हेन यू आर वर्किंग करते हैं तो तकरीबन 30 टाइम्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर से एक्सचेंज ऑफ बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. ठीक है, नाउ क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड द ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट. नाउ यू टेल मी, यू अंडरस्टैंड? सब कुछ समझ में आ गया कुछ? ओके, देन वी विल स्टार्ट. टेस्ट योरसेल्फ. यस, नो मिस. एनी क्वेश्चन? Yes.
Okay, so now you see this is the alveoli. I'll also show the alveoli on. Yes, and anybody know where is the alveoli occur? टीचर एल्विलाई। टीचर वो जो दिन आपने दिखाए थे वो थोड़े बबल्स जैसे थे, ग्रेप्स जैसे। जी जी मैं बैलून, ये आपके पेज हाँ नंबर ग्रेप्स 102 जैसे, पे बैलून बनी है जैसे। ओके, पिक्चर। मैंने 2 पे बनी हुई, अभी दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये दिस इज द alveoli present in our यस मिस chest. ये This is, ठीक है ना, दिस इज एंड दिस स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द ब्लड कैपिलरीज। आपको इसके ऊपर ब्लू और रेड कलर नजर आ रहा है, ये alveoli को कवर की हुई है। ठीक है, सो दिस alveoli Yes, इज अ miss. स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जी बेटा, मिस थोड़ी सी बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम है जी बेटा, बोलिए। यस सर बोले। इसमें तो कुछ नहीं बोल रहा। फिर किसको प्रॉब्लम है, किसी को? टीचर नो साइन नो बोल नो रही थी मैं मरियम बोल को रहा बोलो था कैमरा ऑफ करो। मैं बोल रहा था मरियम को, आप बोल रही थी मरियम को कि वीडियो ऑफ करें। क्यों? अच्छा बेटा एक सेकेंड, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो एनीबॉडी एज इफ यू वांट टू एनी आस्क सेल्फ, नहीं तो हम टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। बस मैं आपको alveoli का स्ट्रक्चर दिखा रही थी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alveoli। ये आपको बाहर से आ गया था, नाउ है, ठीक है, आपके बुक में भी शो किया गया था, मैंने वही आपको alveoli यहां पे शो दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस नहीं alveoli बाहर से है ना, जी बेटा, ये कह रहे हैं कि बाहर का स्ट्रक्चर है ना एल्वेलाई का। ये alveoli का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ जूम स्ट्रक्चर, द रेड कलर इज शो विद ब्लड। ओके, एंड वैसे ये alveoli तो blue फ्रॉम है। द alveoli। हाँ ये ब्लू कलर आपको, ये जी ब्लू जी कलर का alveoli है, और इसके सराउंड दीज आर द ब्लड सेल्स। ओके, ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli, ओके, एंड गिव इट बॉडी के अंदर एंटर होती है। उस ऑक्सीजन में से एयर जो है वो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एयर में से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ब्लू सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस alveoli में लेके आता है, alveoli इसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alveoli। डू यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ alveoli? ये जो क्वेश्चन आंसर Everybody मार्क करवा रहे हैं। understand? Okay, now class we start our test yourself. This is the last test yourself of this Okay, miss. chapter. Okay. Now start. What is breathing? Charter, Okay. Now we. Canada, Okay. Yes. Ayan. Tell. Okay. Tell Ayan. page number 101. Breathing paragraph. Breathing takes place in the lungs and is simply a way of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of it. Yes. Okay. So now page number 101. बस इतना ही है। Breathing heading first line to third line. Okay, from breathing to out of it. This is the question number 1 answer. Okay. Yes. Everybody has marked? Yes. Okay. Now the come on Yes. question number 2. Teacher, where is number 1? Where number 1 page 101. Okay, 101 निकालिए। Breathing का की heading में देखिए first line to third line. Okay. मैं मार्क कर लिया। कर लिए first line to third line. Hari is absent in the class. Yes. Okay. Now the question number 2. Chai will Where does tell. air enter the body? मिस इसके क्या आगे बेटा? आगे लिख ले। हाँ इसी के आगे लिख लीजिए। Air Answer. enters the body through mouth and nose. From mouth to nose. Yes. 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 Then what is number 2 answer? बेटा अभी लोगों ने बताया ना कि आपको you use the question. Okay, you write air enter the body. ठीक है, where does छोटी जगह लिखिएगा air enter the body. इसके आगे लिखिए through From mouth mouth and and nose. ना ठीक है, through mouth and nose. Done. Mouth and nose. Done. Yes. Okay. Now the Yes. question number 3 हो गया हमारा। चल ठीक है। No, no, no. Now the 3 होगा ना? 3 हुआ। 3 नहीं हुआ ना? जी। Name the फिर tube थर्ड का that मैं आंसर बताऊं? हाँ बताइए। नेम पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। नेम द ट्यूब दैट कैरी एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, हाँ बताइए। जब पेज नंबर टीचर 2 होते हैं, एक ब्रोंचिलाइज और एक एल्विलाई। ठीक है, नहीं बेटा। तो पेज नंबर इस 101। ट्रैकिया भी होता है। हाँ तो ट्रैकिया भी होता है। अच्छा, अब आप और से सुनिए। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया? दैट ट्यूब दैट कैरी एयर इनटू द लंग्स, जो लंग्स में लेकर आ रही है। ठीक है, हाँ आप वहां से भी लिख सकते हैं। तो कहना ट्रैकिया से। हाँ यस टेल। कैनाडाइल। यस यस टेल। जब पेज नंबर 101 द स्ट्रक्चर ऑफ अ लंग्स का पैराग्राफ है, जो उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लाइन है। One of these goes into each lung before dividing further into small tubes called bronchioles. Tubes.
ओके बेटा Till the इसको end. ऐसा करें क्वेश्चन से लिखें और आसान हो जाएगा आपके लिए। Okay. ओके कि राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। Okay. ओके नेम की जगह जो है आप कर सकते हैं The tube that ऐसे carry करें। air into the lungs. The हाँ। bronchi is the tube that carry air. हाँ ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। आप नेम की जगह लिख दीजिए ब्रोंकस या ब्रोंकाई। Bronchi लिख देते हैं। ब्रोंकाई लिखते चले, BRONCHI। नेम को कट करके उसके ऊपर लिखिए ब्रोंकाई। The tubes that carry air into the lungs. The bronchi is the tube that carry air into the lungs. हाँ बस ठीक है ना। अब ट्रैकिया से आ रही है, नोज से आ रही है। Teacher, this is the answer. Yeah, this is the answer. ठीक है, this is the answer. Only you write the bronchi instead of the name, and the whole question you write it. Okay. Okay. So now the question 4, describe how oxygen travel from the lungs to the body cell. अब body cell तक जो है वो कैसे जाती है ऑक्सीजन लंग से? You again use the question. आप क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। Yes. सब क्वेश्चन से बता दें। हाँ क्वेश्चन से क्वेश्चन से Oxygen travel from the lung to the body cell. अच्छा जी, चलिए आप ऐसा करें, जो है वो क्वेश्चन से लिख लीजिए। क्वेश्चन में जो है डिस्क्राइब हाउ आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से लिखिए ऑक्सीजन ट्रेवल फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल, उसके आगे लिखिए बाय ब्लड कैपिलरीज। बाय ब्लड कैपिलरीज सही बताएगा, ठीक है। कैपिलर लिखिए CAPPI, ठीक है, डबल L CAPPI डबल L। ये कैपिलरीज किस पे मैं बता दूं? आई है या आर है? नहीं आई, ये यहाँ लिखी हुई देखिए। इसी पे सी डबल पी नहीं है, एक ही पी है। CAPI डबल L ARIES। यस RIES बाय ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज ठीक है, जब बस ब्लड कैप कहाँ से खत्म? हाँ बस, हाँ खत्म। नाउ क्वेश्चन 5, give 3 reasons why alveoli are good for gas exchange. Can I tell? अच्छा एक सेकंड, एक वक्त को एक बता दे, ठीक है। ये पेज 102 पे है, ठीक है। 102 पे जब मैं बता जल्दी से, ताकि हम आगे एक्सरसाइज भी कर सके, ठीक है। तो पेज नंबर 102 पे देखिए, सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हाँ फर्स्ट लाइन का हाफ से शुरू कीजिएगा। तो alveoli are well adapted to speed up this process, ठीक है। और आपको कितने लिखने हैं पूछे हमने, कितने रीजन? 3 रीजन। यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको कोई दोबारा बताएगा। बेटा इसी पेज 102 की फर्स्ट लाइन फिर आप इन सब माइक ऑफ करवा दें, आपकी आवाज नहीं। अच्छा कोई सा भी लिख ले अपनी मर्जी से। नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। हाँ इसमें से कोई भी 3 आप मर्जी से कर सकते हैं, Okay, teacher. ओके मिस। ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको आंसर मिला, मिस दोबारा सुन लीजिए। मिस मैंने ये पहले से कर लिया। हाँ एक सेकंड बता रही हूँ आया, एक मिनट असद की बात सुन लीजिए। असद बोलिए। मिस मैंने ये पहले से कर लिया और मैं कॉपी सबमिट करा के आया हूँ स्कूल में, आपने चेक कर ली? आपकी मैंने भी कब करवाई सबमिट? मिस आप एब्सेंट थे उस दिन। वो मैं थर्सडे को आती हूँ बेटा, थर्सडे के दिन मुझे आगे आने के लिए मैं थर्सडे को आई थी। थर्सडे को जितनी आ गई थी रोल में सारी चेक कर दी थी थर्सडे तक, ठीक है। अब मैं थर्सडे को जाऊंगी तो मैं थर्सडे को चेक कर दूंगी, क्योंकि अब वेडनेसडे तक तो क्लास है। मिस मैंने मिस शाइस्ता को दी थी अपनी क्लास टीचर को। अच्छा तो मिल जाएंगी, मुझे रखी है सब वहीं पे मौजूद है सारी जो रूल मैंने मिस शाइस्ता को दे दी थी। तो मैं थर्सडे को जाऊंगी तो मैं चेक कर दूंगी। ओके मिस, ठीक है। वेडनेसडे तक तो क्लासेस है मेरी, थर्सडे के दिन मैं स्कूल आऊंगी फिर चेक। ओके ठीक है। ओके सो नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट कब जमा करवाना है? नेक्स्ट असाइनमेंट बेटा अभी आपको आई थिंक वेडनेसडे को मिलेगा, फिर आपको उसमें डेट मेंशन होगी कब तक आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो वेडनेसडे को मिलेगा? हाँ वेडनेसडे को मिलेगा नेक्स्ट असाइनमेंट। अभी मिला जो है मिला है ना, जो मिला हुआ है पहले से मिला हुआ है ना, वो तो आपको वेडनेसडे तक सबमिट करवाना है। Teacher, what is question number 5? क्वेश्चन 5 बता रही हूँ देखो मैं 4 दोबारा बता दें, तो ऐसे क्वेश्चन में 5 दोबारा बता दें। 5 दोबारा बता रही हूँ। पेज 102 पे देखिए, पहली लाइन फर्स्ट लाइन में हाफ लाइन के बाद लिखा हुआ है द एल्वेलाई, मिला जी। ओके सो यू राइट इट फ्रॉम हियर, ओके। एंड Teacher, I have done it. 4 पॉइंट, इन दिस 4 पॉइंट यू राइट एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 में से कोई 3 पॉइंट अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, ओके।
So this is the answer of the question number 5. ये मैं 1 2 और 3 लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा, 3 पॉइंट लिखना ना कोई। ठीक है, चलिए सही है। Okay, now the question number 6. What is Can I tell? mucus? What are cilia? Yes. टीचर की डेफिनेशन देख कर लिखनी है। टीचर कैन आई टेल? Yes. mucus और cilia की definition बोल रहे थे लिखनी है। मोहम्मद को। Yes, Mohammed, tell. Then the pair of breathing, third paragraph. So there is mucus. Page number बोलिए। First Page number 101. 101. Okay, yes, everybody take out page 101. Okay, yes, now last para. Yes. Just last para, second line. The small Okay. dust particle. Okay, next sir. मिस इसको छोड़े, वहाँ से ग्लॉसरी से करवा लें। ना ग्लॉसरी से मिस ग्लॉसरी से करवा लें। ओके ओके, राइट। जैसे ग्लॉसरी में मिस मैंने ग्लॉसरी से लिखा है। ओके ओके, आप ग्लॉसरी से भी कर सकते हैं और यहाँ पे इस लास्ट पैरा से भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट पैरा में फर्स्ट लाइन से लिखना है। ओके, साथ में जरा हम ग्लॉसरी से लिखेंगे। चलिए आप ग्लॉसरी से कर लें, ठीक है। यू राइट फ्रॉम ग्लॉसरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके मिस। एक सेकंड पर क्वेश्चन पढ़ लें। एक्सप्लेन व्हाई योर लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग रेट आर लार्जर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग देन व्हेन यू आर asleep। ठीक है। जस्ट टेल बोले। लंग कैपेसिटी के पैराग्राफ में when the lung are fully inflated they hold about 5 liters to hold। मिस ये दोनों पैराग्राफ पूरे आएंगे। नहीं, सिर्फ लंग कैपेसिटी का पैराग्राफ आएगा बस। बेटा पेज नंबर यही है 103, ठीक है। ओके टीचर। पेज 103 जो है वो लंग क्वेश्चन नंबर 7 कैपेसिटी का पूरा पैराग्राफ। लंग कैपेसिटी का पूरा। इस ब्रीथिंग रेट भी तो पूछा है, ब्रीथिंग रेट का भी पूरा पैराग्राफ आएगा, 2 लाइंस जो है। लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग रेट आर लार्जर। हां सही कह रहे हैं। इस दोनों चीजें पूछी है ना, तो दोनों आएंगे। हां सही कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों आएंगे, ब्रीथिंग रेट भी आएगा। इस मैंने दोनों लिखे हैं। एंड लंग के दोनों लिखे हैं, सही है। ब्रीथिंग एंड टीचर दोनों के पूरे पैराग्राफ। टीचर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 and बेटा बोथ आर इन द ग्लॉसरी, बोथ आर इन ग्लॉसरी। ओके टीचर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐड कीजिए, से क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, 7 के नीचे क्वेश्चन 8 लिखिए। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ नीट, हां ड्रॉ नीट एंड लेबल नीट में साफ सुथरी, ठीक है। ड्रॉ नीट एंड लेबल LABEL लेबल, यानी कि सब इसके नाम के आसपास टीचर एंड से लेबल के आगे डायग्राम ऑफ किस चीज की डायग्राम? डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये लंग्स की डायग्राम बनेगी बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सी वाली? ये बनेगी बेटा पेज में 102 वाली। ओके टीचर। ये जो बॉय बना हुआ है वो लड़का जी रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वाली टीचर। हाँ लंग्स वाली बनेगी, उसकी लेबलिंग भी करनी है आपको। टीचर अब मैन नहीं बनाना चाहिए, मैं वही बनाए, सिर्फ लंग्स बना दीजिए, ठीक है। लंग्स की डायग्राम आ दिखा दी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ Okay, have you write this question? Yes. Okay. मिस सिर्फ लंग्स बनाने? Yes, हाँ सिर्फ लंग्स बनाने हैं, आपको पूरा मैन बनाने की जरूरत नहीं है, और बगैर लेबल कीजिएगा। ओके मिस। ठीक है। ओके मिस। आपकी नोटबुक जब आपको ऑफिस में लेगी तब आप उसको बना लीजिएगा। ओके मिस। ओके, उमर नाइम इज हियर। मैं अटेंडेंस मार्क करूं फिर आपको आगे काम करवाऊं। उमर नाइम इज हियर। उमर नाइम नहीं है ना इस वक्त? ओके। हरीम इज नॉट हियर। Muhammad Anas not here. Usaid is here. Okay. Saad is here. Okay, Muhammad is here. Mais. Yes, Mais Zubair is here. Yes, Miss Mais is here. Okay, Sharia is not here. No, Miss. ओके असद इज हियर। ओके चलिए जी, आप लोग अटेंडेंस मार्क हो गई। अब ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरे आपने लगा दी अटेंडेंस? हां यार आपकी लगा दी, आपकी पहले लगा तो मेरी हां आपकी लगा दी बेटा, आप लोगों की लगा दी पहले। ओके अब हम एक्सरसाइज शुरू करें क्लास। डू यू नो आफ्टर दिस एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट आवर SST, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, हम SST शुरू करेंगे। फिर अभी हमारे तो कौन सी एक्सरसाइज?
ये जो हम कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पेज 104 अच्छा पेपर एसएसटी स्टार्ट इस बार एसएससी स्टार्ट होगी सर हमारे इस क्वार्टर में बस ये 8 चैप्टर्स हैं हाँ 2 इसलिए क्वार्टर में। हाँ अब सेकंड क्वार्टर से अब अभी हमारा एसएससी शुरू होगी बेटा, फिर हम एट द एंड जब हमारा जो है वो फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे पहले हम दोबारा साइंस शुरू करेंगे। इस मतलब कल से एसएसटी शुरू होगी। हाँ अगर कल ही खत्म हो गई तो कल ही शुरू हो जाएगी, अगर एक्सरसाइज कल ही खत्म हो गई तो कल से शुरू कर देंगे, और अगर कल तक एक्सरसाइज खत्म हो पाई तो फिर परसों शुरू कर देंगे। ओके मिस। चलो ओके टीचर एसएसटी की तो अलग नोटबुक्स हैं तो उसमें अलग होगा। यस यस बिल्कुल एसएससी नोटबुक इज सेपरेट, बुक इज सेपरेट, नोटबुक इज सेपरेट। यस ओके यस ओके सर नाउ स्टार्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज स्टार्ट करें जल्दी से बेटा। नाउ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन यस B and D. B and D arm and legs बेटा D all cells D all cell So the multiple choice questions. yes yes multiple choice question okay in multiple choice B नहीं question होगा। नहीं B नहीं बेटा रेस्पिरेशन तो हर सेल में होती है ना, हार्ट में भी होती है, आर्म में भी होती है, हर जगह होती है, ठीक है। सो यू राइट इट मिस सेकंड वाले का A है। सी है अच्छा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। एक सेकंड पढ़ लूं which two things are Teacher needed D, for teacher aerobic D, respiration water and oxygen. टीचर इन सब के माइक ऑफ करवा दें, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ A है सेकंड वाले का A। अच्छा एक सेकंड सेकंड वाले का C है बेटा, D है। C ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन A है। एंड ग्लूकोज। नहीं A नहीं है बेटा, बेटा A में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी चाहिए होती है, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। सो फॉर द 2 C आती 2 का आंसर जो है C है, ठीक है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नंबर 3 है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड B. यस B कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। B इज द आंसर ऑफ द नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। नाउ नंबर 4 इन विच पार्ट ऑफ अ सेल does respiration take place? Mitochondria. C mitochondria। Yes सही है C, okay C mitochondria, okay। Now the number 5 anaerobic respiration can only take place in plant and animal। C सही है C in plant and animal। in plant and animal सही है बिल्कुल, ठीक है। Now the list is 2 for 1 minute रह गया हमारे पास। Teacher The body gets its energy from a chemical reaction called respiration which take place in the cells, okay। True. Yes true है, ठीक है। Now the false number 2 the amount of carbon dioxide breathed out is about the same as the breathe in। False. ठीक है false है, जब जो false का रीजन पता नहीं हो पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं रीजन के साथ दूंगी फिर। Mitochondria are found in all living cell where respiration is taking place। True. Yes miss true। True है, ठीक है। Lactic acid is the sort of halfway stage between oxygen and carbon dioxide। False. True है, False. नहीं बेट True है मिस। ठीक है। और नंबर 5 है yeast can respire aerobically with oxygen and anaerobically without oxygen। True. Okay yes true है। Okay बेटा class time is over। Okay अस्सलाम वालेकुम। चला अल्लाह हाफिज। फिर अस्सलाम